Hi guys, few months back I have just uploaded one video on the inventory revision if I'm not wrong, and second video I uploaded on efficiency ratios. Now based on around 100 of messages of the CMA students said please upload some important topics short videos so that we can revise the more content easily. Now based on such thing I just what I can say that I promise you that each and every Thursday I'm going to upload some of the short videos in which you can revise the whole content. Okay, so without any time, let's start with some basic topic which I'm starting with the corporate finance. Okay, so this slide, which whatever I'm teaching you, it's for my normal regular lectures where I invest around 5 to 6 hours to teach these topics. But here I'm just going to discuss all the elements which I have taught in my revision class. Okay, now first of all, corporate finance is a 20 to 30% weightage in your examination. Okay, so ये देख के पता चलता है कि बहुत से important है, पढ़ना पड़ेगा. Now basically let's start with the risk and return. Risk and return simple सा meaning. सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं. What do you mean by return? रिटर्न मतलब अगर मैंने 100 रुपया लगाया तो उसके ऊपर कितना पैसा मिलेगा. Okay, if I'm investing 100 rupees, how much I'm getting? That is my returns. Okay, now please understand, return, what I have written, it is a reward for the particular investment, cash inflow on the invested amount. Now you need to calculate something called as annual return. Now please understand, annual return has a two parts. The first part is capital return, second part is income returns. Okay, now what do you mean by capital return? Capital return मतलब simple. Now please understand, let's say मैंने अगर स्टार्टिंग में 100 रुपीज लिया था और उसका साल के एंड में या तो एंड में 120 हो गया, so normally please understand, कोई तुमको पूछा कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, then normally you will say सर 120 था, 100 रुपया मिला, डिवाइड बाय 100, 100 रुपया डाला था, तो normally what you are getting 20%. This 20% is a difference of a capital. आज के डेट में क्या कैपिटल का अमाउंट है, ओपनिंग में क्या था, दैट डिफरेंस इज समथिंग नोन एज कैपिटल रिटर्न. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर इनकम रिटर्न? इनकम रिटर्न का सिंपल मीनिंग कि मुझे उस इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा मिला. लेट्स से अज्यूम तुमने एफडी में अगर 1000 रुपया डाला है and the bank is saying देख भाई तेरे को 10% मिलेगा. Now what do you mean? He is saying that you will get 10% interest, means it's 100 rupees. 100 पे 1000 पे आपको 100 मिला, multiplied by 10%, sorry, not multiplied by 10%, sorry, it's 100%, then you will say it is 10%. Okay, this 10% is your income returns. Now so what is the next funda? Next funda is very important. You need to calculate the total returns. Sir total returns क्या हुआ, देख भाई, capital income ले plus कर, that total comes to total returns. Now next please understand, sir इसको total formula में कैसे लगाऊं? Now please understand, कैपिटल को मैंने अलग कर दिया, इनकम को अलग कर दिया, द डिनोमिनेटर इज सेम, means the total formula is ending value minus ending value minus opening value plus income during the year divided by opening value. Returns is over, annual return is over. Now the next part, please always understand, the deemed assumption is whenever someone is giving you percentage, it means ये percentage आपका per annum है. नो डाउट समटाइम्स क्वेश्चन इतना क्रिटिकल होता है कि आपको वो 6 महीने का डिटेल्स अगर दे दिया, लेट्स से तुमको बोला 1 जन 2020 को 1000 इन्वेस्ट किया, 30/6/2020 को ये 1200 हो गया. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो आप 1200 रिटर्न बोल रहे हो, ओके, 200 द रिटर्न्स व्हिच यू आर सीइंग ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000. नाउ प्लीज गाइस अंडरस्टैंड, ये जो रिटर्न्स आपको मिल रहा ना इस मोमेंट पे, दिस 32.3%, इफ यू सी दिस कैलकुलेशन यू विल अंडरस्टैंड ये रिटर्न आपका 6 महीने का है. So normally when I say that deemed assumption is the per unit should be the percentage per annum, it means आपको उस returns को annual में convert करना पड़ेगा. तो बॉस very simple, अगर ये 6 महीने का है then multiplied by 2. अगर ये 3 months का है then whatever will be the amount you have to do multiplied by 4. Then अगर ये monthly है then multiplied by 12. And half yearly, quarterly and monthly. That's it. That is your annualized return. Now please understand, there is some topic which I have seen in the Baker textbook, okay, which I have recently purchased. Now please understand, ये arithmetical return और geometric return आपके portion में नहीं है, but just because it's my regular batch I have to teach, so I'm not revising this content. Now let's go on next. Now फोर्थ पॉइंट इज अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट. जो भी आपको आपने बॉन्ड्स लिया, आपको जो भी रेट बोला, लेट्स से ही इज सेइंग 10% इंटरेस्ट मिलेगा, दिस 10% इज अ स्टेटेड रेट जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? नॉर्मली क्या होता है पता है, जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करता है, ही नीड टू इनकर सम कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, उसको इंटरेस्ट का कॉस्ट या तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सब कॉस्ट निकालना पड़ता है. सर व्हाट टू डू इन दैट? कुछ नहीं, पहला अपना फॉर्मूला लगाओ.
So no doubt if someone is giving you interest at the rate 10%, okay, now please understand, let's say वो तुम्हारा बॉन्ड 1000 का था, उसके ऊपर उसने 75 रुपीज एक्सपेंस दिया, 50 रुपीज और एक्सपेंस दिया, दिस इज द टोटल परसेंटेज विच यू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 100. लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, दिस परसेंटेज इज नोन एज इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, मींस आफ्टर पुटिंग इम्पैक्ट ऑफ these expenses. Now those who are already cleared their CMA or they are referring, they have already studied, they know this type of cost is something known as flotation cost. Okay, now next is cumulative rate. बचपन में बाबा लेवल पे पढ़ा होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. क्यूमुलेटिव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के इनकम पे इन्वेस्टमेंट. सो नो डाउट अगर 1000 इन्वेस्ट किया, 1.1 मिला, इस साल तेरे को 1100 मिला, नेक्स्ट ईयर तू 1100 फिर से डालेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1.1. सो नॉर्मली तुझे यहाँ पे 120 कुछ समथिंग 00 मिलेगा. ओके, दैट इज समथिंग नोन एज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट. बाबा लेवल पे यू हैव लर्नड. ओके, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्क. रिटर्न्स का पूरा चैप्टर हो गया. नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिस्क. सर रिस्क मतलब क्या है? रिस्क मतलब व्हाट कुड गो रॉन्ग. सिंपल. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर दो टाइप का होता है. एक को बोलते हैं थिंकिंग विच इज रिस्क अवर्जन, दूसरा होता है रिस्क सीकर. रिस्क अवर्जन वाला ऐसा बंदा होता है, वो बोलता है मुझे रिस्क नहीं चाहिए. ओके, अगर उसको रिस्क नहीं चाहिए तो नॉर्मली अगर उसका लो रिस्क हुआ तो मार्केट में उसको पैसा भी कम मिलेगा. लेट्स से योर अंकल एंड आंटी, they might be telling you, बॉस मेरे को शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालना है, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. तो व्हाट यू विल सजेस्ट, सर एफडी में डाल दो, 6% मिलेगा, लो रिस्क लो रिटर्न. ओके, रिस्क सीकर क्या होता है पता है? बहुत मस्ती होता है उसको, वो बार बार तुमको बोलेगा बॉस मेरे को तो रिस्क लेने का है, मुझे तो रिस्क लेने का है. ठीक है, चलो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड. तो दो फंडा हुआ, रिस्क अवर्जन एंड रिस्क सीकर. Now please understand, now I'm starting with the type of risk. Okay, now the next part, the first part is investment risk. Investment risk मतलब simple, आज मैंने पैसा डाला तो क्या ये पैसा मेरा ऊपर नीचे तो नहीं होगा? Let's say example, कंट्री में कुछ हो गया. Now you might have heard about systematic risk and unsystematic risk. सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? पूरा पता है. पूरे कंट्री पे तुम पोर्टफोलियो में कुछ भी कर लो, मींस अगर तुमने शेयर्स को बेच के बॉन्ड खरीद लिया तो भी कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी डाउन है, रिसेशन चालू है, कंट्री में वॉर चालू है, इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री डाउन पे है. नो डाउट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ऐसे ही दीज वर सिस्टमैटिक रिस्क. सो इसको बोलते हैं नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क. अब एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट पे यू कैन नॉट गो. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमेटिक रिस्क का सिंपल मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल, लेट्स से किसी कंपनी के शेयर्स डाउन 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 जा रहे हैं. लेट्स से रिसेंटली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शुगर इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन पे था, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे या तो क्रॉप्स का कुछ इशू हो गया था, तो शुगर प्राइसेस वे गोइंग डाउन 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 डाउन. तो नो डाउट अगर आपके पास शुगर इंडस्ट्रीज के अगर शेयर्स है, what you can do, you can sell that shares and you can go to some other sector. जो भी रिस्क आप मैनेज कर सकते हो due to your diversification, that risk is called as unsystematic risk. Now next risk is credit risk. सामने वाली पार्टी को ये रिस्क लग रहा है कि ये पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज क्रेडिट रिस्क. नॉर्मली एक ऐसा कंपनी है जो तुमको लगता है जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत ही कम है. सो नॉर्मली व्हाट यू विल डू, यू विल सजेस्ट, देख बॉस अगर मुझे लगता है कि तेरा क्रेडिट रेटिंग कम है, देन सामने वाली कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, दैट इज माय क्रेडिट रिस्क. नाउ सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. तीन टाइप में मैंने उसको डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा इकोनॉमिक एक्सपोजर, तीसरा ट्रांसलेशन एक्सपोजर. नाउ फर्स्ट वन, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. ये क्या होता है? आज अगर परचेज किया, लेट्स से परचेज किया था $74 में, नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट का आया तो 76 हो गया, बॉस आई नीड टू पे ₹2 एक्स्ट्रा. इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है? डॉलर बढ़ रहा है, रुपीस कम हो रहा है, रुपीस कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है. इकोनॉमिक इंपैक्ट की वजह से ये सब अप डाउन जा रहा है, इवन दैट इज अ रिस्क. ट्रांसलेशन एक्सपोजर, मैं सब्सिडरी कंपनी हूं, मेरा होल्डिंग कंपनी यूएस में, तो नो डाउट मेरा ट्रांसलेशन, मुझे यहाँ की कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चलेगा, मुझे इस कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो नो डाउट आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर रेट. नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिस्क. आज तुमने बॉन्ड लिया, 6% इंटरेस्ट था, ओके. कल को अगर तुम एक साल बाद देख रहे हो मार्केट में 8% मिल रहा है लेकिन तुम्हारा बॉन्ड 6% पे ही है, सो नॉर्मली यू फील ओहो ये क्या पाप कर दिया मैंने. ओके, दैट इज इंटरेस्ट रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क, ओहो हो ये तो सबको मालूम है, corruption, barriers from the government, incompatibility of the foreign exchange, war, etc. Economic impact on the entire country. Okay. Now, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था. What do you mean by diversification?
लेट्स से डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, लेट्स से आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज में अलग अलग कंपनी के या तो अलग अलग सेक्टर के शेयर्स है। नॉर्मली हर एक सेक्टर आपको अलग अलग रिटर्न देगा या तो हर एक सिक्योरिटी अलग अलग रिटर्न देगा। नो डाउट अगर आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी बार 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 इट्स गेटिंग डाउन 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 डाउन, देन व्हाट यू कैन डू, वो शेयर्स बेच दो, अलग शेयर्स ले लो। What you are doing, you are just doing your diversification just for the change of portfolio or just want to increase your return. When I given this example in the classroom, I have taken the example, जैसे पहले मेरा ये रिटर्न आ रहा था अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग समथिंग तो कुछ आ रहा था, सो 8.9835, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिक्योरिटी, ये माइनस में कोई सिक्योरिटी था, मैंने इसका पैसा निकाल के इसमें डाल दिया, देन आई गॉट 10.56%। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 8.935 पे इन्वेस्टमेंट पे अगर मैंने डाइवर्सिफाई किया, it is getting converted to 10.50. In the next Thursday, I'm going to give you a long-term financial management ka video. Please stay tuned at a Pix Education. Thank you so much.